Newton's gravitational law, F equals to G, as we have had some idea of this chapter. So we are starting directly from this thing. Write the formula, draw two masses, M1 and M2. Show what R is. R is center to center distance of the two bodies, and if the bodies are point mass तब तो कोई बात ही नहीं, just distance लिखने से ही चलेगा. But if they are larger masses, then center to center distance is r. Then this is gravitational law. Force directly proportional to product of the masses m1 m2, and force inversely proportional to the square of the distance between their centers. So taken together, product of masses are inverse square of the distance between their centers is the gravitational force, which is given a constant, capital G. This G is called a universal constant. Universal constant means it is constant for both heavy or very small masses. It doesn't depend on states like liquid, solid. Neither depends on the distances the bodies are apart. I mean, value of G only. That means if the distances are very small or very large, only it has got an exception, that value of this G is a constant given by G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11. This is the value of capital G. 6.67 10 to the power minus 11. The only exception are these cases when we are very close to, not we, actually masses. So when the masses are very close to the sun, or the distances is very, very less, maybe less than Armstrong. That means very small distances, subatomic distances. Then the value of G changes. And maybe Newton's law may not be holding as good as for other cases. So these are the two cases, try to remember them. When Newton's gravitational law may fail to give us correct values. That means this capital G will not have this value. First part, second part. If you have understood this, then let us go with this thing. Suppose m1 mass, m2 mass. This is what? Vector representation or vector form of Newton's gravitational law. Second thing, vector form. Suppose this is mass m1, this is mass m2, this is origin O, and these are the three axes, I cap, j cap, and k cap. The first, I am drawing them. You also do that. Chalo origin take draw karo. Let the position vector of the mass m1 be r1. That means the mass m1 be at r1 distance, vector r1, and the position of m2 be vector r2. So what is r? R is the distance between their centers, center to center distance. This is r. But we want to write r in a vector manner. How can we do that? So let us see this. Look, vector f equals to G m1, product of the two masses, m2 divided by r square. अरे ये तो value हो गया सिर्फ, only the magnitude of this.
Yes, this is the value, magnitude. And then comes the direction of this force. Now it depends again on what force are you going to find. What force? We are going to find gravitational force. Okay, but gravitational force on mass m1 would be towards this direction. We can call it not f but f1. मूवी का बात नहीं कर रहा हूं मैं. f1 exerted by 2, that means f12. f1 exerted by 2, that means f12. And which direction that would be? मैं तो एक चीज बोलना भूल ही गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स अनलाइक, अगर कुछ है अनलाइक अदर टू फील्ड फोर्सेस, कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक. उसमें क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट कैन ओनली बी अट्रैक्टिव फोर्स. It can only be attractive force, gravitational force. So, force on mass m1, m2 m1 को टानेगा. सिंपल मान है. किधर? इधर. So this direction gives everything. कैसे? This direction shows. एरो देखो, मैं एक शॉर्टकट बताया था तुम लोगों को. This direction shows. This direction shows this is the end point, that is the last point, and this is the first point. किसका? एरो का. एरो ends here. और एरो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. देखो एरो यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड करेगा. एंड करे ना करे मतलब स्टार्ट तो यहीं से किया. तो सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो. सो कंसीडर दिस टू बी द लास्ट पॉइंट एंड कंसीडर दिस टू बी द फर्स्ट पॉइंट. भाई किसका फर्स्ट लास्ट? वेक्टर का. इफ वी राइट दिस डायरेक्शन टू बी वेक्टर आर नाउ, so vector r would be given by law of triangle of vector addition. same order में ये और ये लिया हुआ है. same order, देखो follow the order. same order में लिया हुआ है. this is in opposite order. so opposite order वाला vector r2 would be given as a resultant. resultant मैंने क्या बोला था वेक्टर में? प्लस साइन between the other two same order वाला वेक्टर्स. कौन कौन है? r1 और r. So from this we can easily find vector r. कैसा होगा? r2 vector minus r1 vector. So यहाँ पे देखो r2 minus r1, उसलिए इसको ऐसे लिखते हैं r21. r2 minus r1, फाइनल माइनस इनिशियल. मैं तो बोला था तुम लोगों को लास्ट माइनस फर्स्ट, याद है कि नहीं? बोलो वेक्टर में टू फाइंड अ वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स मैं शॉर्टकट क्या बोला था? लास्ट माइनस फर्स्ट. अब प्रॉब्लम ये है कि लास्ट कौन सा फर्स्ट कौन सा, समझ में कैसे आएगा? बाय सीइंग द एरो. Which arrow? यहां पे तो एरो होगा, the arrow of the force. ये फोर्स F21 का एरो यहां से यहां तक ऐसे attractive. So it starts from here, ends here. So we call it last and we call this first. और शॉर्टकट क्या है? ये देखो लास्ट लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं. शॉर्टकट क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट. लास्ट में कौन है? ये R2 जाके खत्म हुआ. फर्स्ट में कौन है? R1 जाके खत्म हुआ. तो लास्ट माइनस फर्स्ट मींस R2 माइनस R1 खत्म. डायरेक्ट. But let us depict it as R21 so that ये समझ में आए कि पहले 2 आएगा फिर 1. R2 minus R1. So we can write it R21. लेकिन देखो नोटिस करके F का सफिक्स क्या हो गया? F on 1. 1 का ऊपर फोर्स exerted by 2. If you can remember so much things, so many things, तब तो ठीक है. अदरवाइज ये उल्टा हो जाएगा. इसको याद रखना. F12 तो R21 खत्म. शॉर्टकट भी तो देखना है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. if we write similarly F21, then we can write magnitude part G m1 m2 divided by distance square into R का क्या हो जाएगा? R का क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, ये 1 2 होगा. क्यों? फॉर सेम रीजन. यहाँ पे सेम रीजन. तो चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं. ये डिस्टेंस है, या तो इसको आई कैप ही बोलते हैं. ड्रॉ करो. जे कैप एंड के कैप. ड्रॉ 3 फैक्टर्स. आई कैप, जे कैप, के कैप. ड्रॉ हियर अ मास m1 2 kg. Draw here another mass m2 5 kg. Now m1 mass is having coordinates
1 4 4. M2 mass is having coordinates 4 1 and 2. These are the coordinates. Now you have to do what? You have to find force acting between these two masses. Question क्या है? Force of gravity between M1 and M2. चलो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, तो F इक्वल्स टू जी को ना फिलहाल जी रखते हैं, चलो अदरवाइज यू मैं पुट द वैल्यू, चलो वैल्यू पुट ही कर देता हूँ, एक बार तो वैल्यू पुट करके करूँ। 6.67 10 to the power minus 11, हाँ याद है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। M1 M2, M1 2 kg, M2 5 kg, हो गया M1 M2। चलो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अरे आर तो दिया हुआ नहीं है, निकाल लेंगे। सो लेट अस फाइंड दिस, आर इज नथिंग बट दिस। नाउ लेट अस फर्स्ट सेलेक्ट, याद रखो इसको ठीक से, लेट अस फर्स्ट सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स क्वेश्चन में पूछा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन M1 एंड M2। भाई कोई भी एक कर दो, बोला ही नहीं कि 1 का ऊपर ना 2 का ऊपर, डू एनी वन। पर अगर ऐसा रहता, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि ऑन M1, ऐसा अगर रहता, अगर तब 1 का ऊपर फोर्स तो अट्रैक्टिव होता, तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस। तो ये फोर्स को क्या बोलते हैं? F1 एक्सर्टेड बाय 2, ये हो जाता वेक्टर। अब देखो एरो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स दिस, तो ये लास्ट पॉइंट और ये शुरू का पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट और इसको बोलेंगे लास्ट पॉइंट। सिमिलरली वी कैन फाइंड, 3 स्टेप्स दिखा रहा हूं, इन फ्यूचर ऑल्सो वेन एवर यू डील थिंग्स विद वेक्टर मेथड, एंड यू वुड बी डूइंग दिस इन क्लास 12, starting from the first chapter, class 12, you would be dealing with such vectors. क्या करना सुनो, 3 steps देख लो, क्या करना है सुनो, 3 steps. Step number 1, वेक्टर R निकालो। कैसे? वही लास्ट माइनस फर्स्ट करके, दिस वुड बी स्टेप 1, ठीक ना। तो वेक्टर 1 R कैसे निकल रहा है, डायरेक्टली करते हैं। चलो ये एरो का ये लास्ट है, लास्ट का x माइनस फर्स्ट का x, 4 minus 1 3 I कैप, प्लस लास्ट का y एक्सिस, फर्स्ट का y एक्सिस, 1 minus 4 minus 3 j कैप, प्लस लास्ट का k कैप माइनस z एक्सिस माइनस फर्स्ट का z एक्सिस, 2 minus 4 minus 2 k कैप। ये निकल गया वेक्टर R। सेकेंड, इट स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है, सिंपल है, वेक्टर R जो निकला ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मॉड ऑफ वेक्टर R। सिंपल है, सिंपल। कैसा सिंपल? वी नो दिस, कैसे? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a कितना है? 3, b कितना है? वो भी 3, मतलब -3 किसका भी स्क्वायर करो एक ही बात है। c कितना है? 2, सो कितना आ रहा है देखो, 9 प्लस 9 प्लस 4, 18 and 4 22, root under 22. So this is the distance between them, mod R. And step 3 में क्या किया जाता है? We find cap R, cap माने unit vector along that cap. So cap R equals to vector R. Remember unit vector, vector R divided by mod of vector R. If a vector quantity, याद दिला दे रहा हूं, if a vector quantity is divided by its magnitude, then we get a unit vector along that main vector. Main vector vector R, उसको अगर उसका magnitude mod vector R से divide कर दूं, तो we get a unit vector। मतलब unit vector होता क्या है? Direction. This is the direction only, that is the unit vector, इसलिए फाइंड करते हैं। तो चलो 3 स्टेप हो गया, वेक्टर आर निकाले लास्ट माइनस फर्स्ट करके, देन रूट ओवर स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, देन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस काम आती है? डायरेक्शन। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। जी M1 M2 तक करके हम लोग रुके हुए थे, एंड द फाइनल दैट इज द लास्ट पार्ट इज आर स्क्वायर। आर कम्स एट मैग्नीट्यूड, देखो आर का, भाई आर कहां हो तुम? ये मैग्नीट्यूड कितना है? √22, तो √22 का स्क्वायर हो गया। दिस इज द फोर्स। इफ दे डू नॉट आस्क फॉर डायरेक्शन, दिस इज द आंसर, खत्म। तो इतना कुछ
इतना कुछ इसलिए कि अगर क्वेश्चन में पूछता कि ऑन M1 और फोर्स, अगर बोलता कि फोर्स वेक्टर, आजकल कुछ बोला नहीं जा सकता है, फोर्स वेक्टर निकालो, देन वी शुड हैव डन दिस थिंग। वेक्टर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड पार्ट अलग हो गया, देन कम्स द डायरेक्शन पार्ट। डायरेक्शन पार्ट मींस दिस थिंग, दिस इज द डायरेक्शन पार्ट। तो चलो इसको बैठा देते, वेक्टर आर, ये रहा वेक्टर आर, कितना भाई साहब, कितना हो, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक लिखा मैं, देखो 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो रूट 22 कब से होकर बैठा है, सो रूट 22, दिस इज वेक्टर एफ, किसका ऊपर, ऑन 1, कौन दे रहा है, बाय 2, f12, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां तक करके छोड़ दे रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन कर लेना बिकॉज आगे बढ़ना है जल्दी। अब कैलकुलेशन के लिए, अच्छा ठीक है बाद में कर दूंगा, चलो, बट द कैलकुलेशन इज नॉट दैट टफ, सी हियर, नॉट दैट टफ। नीचे रूट 22 रह जाएगा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो 10 हो जाएगा, 2 और 5 मिलकर 10 इंटू दिस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और वेक्टर ऐसे रह जाएगा, सो ये ऐसे रह जाएगा। सो ये कितना आ जा रहा है, देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 था, माइनस 10 हो जाएगा बिकॉज ये 10 हो गया, नीचे रूट 22 का स्क्वायर 22, और नीचे ये एक रूट 22 है तो रहेगा ऐसा 22 रूट 22, अच्छा नंबर है, ये हो गया। और वेक्टर वाला पार्ट सेपरेट रहेगा, 3i कैप 3j कैप और माइनस 2k कैप, दिस इज द आंसर। ये नाउ वैल्यूज ऐसे देगा, डोंट वरी, ताकि ये 6.67 को तुमको 22 से डिवाइड करना ना पड़े, सो दैट इट कैन बी फाउंड वेरी इजीली। और रूट 22 का बदले में मान लो ऐसा आ गया रूट 9, रूट 16, तो इट कैन बी इजीली डन, डोंट वरी। और अगर ऐसा रूट 22 आ जाता है, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट दैट, ऐसे छोड़ देना। इन CBSE, इन ISC तो कैलकुलेटर अलाउड, डोंट वरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नियरेस्ट वैल्यू ले लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो तो मैं सिखाता जाता हूं। चलो नेक्स्ट पार्ट, लेट अस लीव दिस नाउ, फॉर नाउ हम लोग सीख गए, वी फाउंड हाउ टू डू दिस, देन वी प्रैक्टिस्ड अ न्यूमेरिकल, थोड़ा लेंथी हो गया, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो सिंपल टर्म्स में व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, सिंपल टर्म एकदम नॉर्मल करते हैं। चलो, इसका मास कैपिटल M, कोई वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं है, इसका मास स्मॉल m, कोई वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं, तो एक काम करो, इसका मास ही कैपिटल M ले लो और इसका ले लो 16 कैपिटल M, हो गया इजी। इसका जो रेडियस है, इसका ये रेडियस ले लो कुछ 4r, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस r, हाँ दोनों का डिस्टेंस, सेंटर इसका और इसका, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना ले लोगे, फोर आर ले लो, दिस डिस्टेंस इज 4r। अच्छा ये भी 4r, ये भी 4r, ठीक है, चलो प्लीज मान लो इसको कि ये भी 4r है, दो इट डजंट लुक लाइक कि दिस वुड बी 4r, सॉरी फॉर दैट, बट मान लो ऐसे। सो व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 16m, ऑन 16m मास, इसका ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, एक्सर्टेड बाय दैट। चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं। F इक्वल्स टू G M माना 16m, M1 M2 माना कैपिटल M, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 5r, इसका माना रूट ओवर 5r का होल स्क्वायर माना 5r स्क्वायर, ऐसा आएगा।
5r का स्क्वायर कैसे आ रहा है? (5r). This would be the answer. Now your task is to justify this. ये कैसे हो रहा है भाई? कोई लॉजिक तो होगा कुछ. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर तो दिया हुआ है 4r. मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प ले लेता हूं. It doesn't mean that it requires technology, but looks good. कैसे? ऐसे देखो, ये दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4r नहीं है. Why? दिख रहा है 4r, ये तो ये तो ऐसे दिख रहा है. दिस इज तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस. एक्चुअली इसका सेंटर है कहां? लेट मी मार्क इट बाय दिस फिंगर. यहां पे है. और उसका सेंटर कहां है? यहां पे है. So this is the center to center distance. You need to be able to think clearly, visualize it. ना किसी फॉर्मूला बैठाना है. So if that is the distance, tell me one thing. If that is the distance, then how much is this? ये कितना है? ये डिस्टेंस. ये तो दिया 4r. हाँ, ये भी 4r है. नो प्रॉब्लम. तो ये बता दो कि हाउ मच इज दिस. इसका रेडियस है 4r. उसमें से दिस पार्ट इज r. ये कितना है? r. इसका हाइट कितना ऊपर है? r. तो ये r r r r यहां तक भी ये r ही होगा ना. ये तो टोटल 4r और ये r. सो दिस हाइट इज 3r ऑब्वियसली. अब बताओ, इफ दिस इज 3r, दिस इज 4r, सो दिस डिस्टेंस इज रूट ओवर ऑफ 3r और 4r का स्क्वायर. जानते हो तुम लोग 5r होता है. So gravitational pull offered by M on 16M would be in this direction. इधर होगा. This would be that force we are looking for, and this force would be this much. हाँ, अब ठीक लग रहा है. ठीक है. Now we understand this. The force between these two masses will be towards the line joining their center. ये मैं सम क्यों कराता हूं? So that we can add one line to this. ये gravitational Newton's law is not about the product only. It is the proportional to the product of the masses and inversely square. That means inversely proportional to the square of the distance between their centers. इतना बोल के छोड़ नहीं देना है. और क्या बोलना है? और ये बोलना है कि and this force acts along the line. कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन. joining the centers, the or their centers. ये हुआ कंप्लीट आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स का. और वो ना ये सम के बिना अधूरा रह जाता इफ यू डोंट डू दिस सम. देख रहे हो? तो न्यूमेरिकल इज फॉर गुड, फॉर अंडरस्टैंडिंग. सम बनाओ, फिर थ्योरी में जाओ, देखो हाउ इजी दैट बिकम्स. तो हाउ मच इज इट कमिंग? g m² डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू फैक्टर कितना आ रहा? 16/25. आजकल तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फोर्स ऑन दिस इज g m²/r² दिया हुआ है इनटू m/n. नाउ m कितना है और n कितना है? तो m वुड बी 16, n वुड बी 25 इफ इट कम्स इन दैट फॉर्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट ये तो हो गया. नाउ लिखो कि रिलेशन. अब थ्योरी में जाते हैं. चलो, रिलेशन थ्योरी स्टार्ट हो गया. बिटवीन जीजी. ये जीजी क्या है? जी एंड जी. रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. करना क्या है? अच्छा, मैं तो मेरे से ना सर्कल ठीक से ड्रॉ नहीं किया जाता. मैंने स्पेशली ऑन बोर्ड कॉपी में कर दूंगा. मैं ऐसा मत सोचना कि कॉपी में नहीं कर सकता. पास किया हूं मैं 12. सो सर्कल कहाँ गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई. सर्कल आ जा. सर्कल
नहीं आ रहा है टू, हाँ ठीक है। तो दिस इज अ सर्कल, आई मीन स्फीयर। ये स्फीयर कौन सा है? ये हम लोगों का प्यारा सा अर्थ है। एंड देन वी आर हैविंग बुर्ज खलीफा ऑन दिस। बुर्ज खलीफा क्यों? हम लोगों का बिल्डिंग क्यों नहीं? अच्छा चलो, हम लोगों का ही बिल्डिंग है। Whatever be the height of that building doesn't matter, because अर्थ का जो रेडियस है ना, कैपिटल आर, ये नियरली, थोड़ा सा जान के रखो, याद नहीं रखना, जान के रखो, 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, कैपिटल आर। उसका रेस्पेक्ट में बुर्ज खलीफा तो मामूली है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इग्नोर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बोलेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ, क्लियर हो गया? तो मैं पिछला बार बोला था कि डिस्टेंस शुड बी टेकन बिटवीन सेंटर टू सेंटर। तो अर्थ का तो सेंटर मान लिए ओ है, इसका सेंटर कहां है? इसका सेंटर भाई इतना ही थोड़ा सा ऊपर है कि वी कैन नेग्लेक्ट इट कंपेयर टू और लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ आर। आर का रेस्पेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है? सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज नाउ कैन बी टेकन इन अ रिलैक्स्ड वे। आर फॉर रिलैक्स्ड, कितना? कैपिटल आर ओनली, ओके। और इसका जो थोड़ा सा हाइट एच है, नेग्लेक्टेड, ठीक है? सो व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन दिस मास स्मॉल एम? स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से थ्योरी स्टार्ट होता है। फोर्स ऑन मास स्मॉल एम कितना हो गया? एफ जी एम एम बाय दोनों का डिस्टेंस सिर्फ आर स्क्वायर। देयरफॉर एक्सीलरेशन किसके लिए? ड्यू टू अर्थ ए इक्वल्स टू फोर्स बाय, भाई जिसका एक्सीलरेशन होगा उसी का मास लिखेंगे ना नीचे। तो एक्सीलरेशन इज फॉर एप्पल ना फॉर अर्थ। कौन एक्सीलरेट करेगा? दोनों ही करेगा, पर अर्थ का एक्सीलरेशन कंपेयर टू एप्पल वुड बी नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई एप्पल मूव्स टुवर्ड्स अर्थ। ये हम लोग जानते हैं स्टोरी। तो यहाँ पे मैं एप्पल के लिए स्मॉल एम बोल रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम, तो फोर्स बाय स्मॉल एम करना पड़ेगा। तो स्मॉल एम से अगर डिवाइड कर दोगे ये फोर्स को, ये कितना आ जाएगा? जनरल मैनेजर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। जनरल मैनेजर माने जी एम, कैपिटल जी कैपिटल एम। और एक चीज है, अरे इसी एक्सीलरेशन को तो हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्यार से आ जा तो बाबू, कौन सा एक्सीलरेशन है तू? जी, दिखा दे अपने आप को, आ जा। जी आ गया, तो जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, बिकॉज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी इज स्पेशली टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। है तो एक्सीलरेशन, टाइटल तो एक्सीलरेशन है, नाम है ग्रेविटेशनल, सो इट इज एन एक्सीलरेशन। जस्ट ए का बदले में जी लिख दो। सो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी इज गिवन बाय जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर। रेडी हो गया, बस इतना ही थ्योरी था, इतना ही थ्योरी था। बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, जो भी अर्थ रिलेटेड थ्योरी करोगे ना, अर्थ रिलेटेड थ्योरी, उसमें एक लाइन जरूर लिख देना कि लेट अर्थ बी चंगा बोलिए, लेट अर्थ बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर of radius capital R and mass capital F। बस इतना लिख देना कि यूनिफॉर्म स्फीयर है, जो कि ये है नहीं प्रैक्टिकली, तो ये सिर्फ थ्योरी के लिए है। तो अगर ये बन गया तो वी कैन मूव नेक्स्ट। बट याद रखना, ऐसा बहुत कम थ्योरी होगा जहां पे तुमको ये अप्लाई नहीं करना पड़े। दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जी इक्वल्स टू जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टार देके लिखो, नेक्स्ट क्या? स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी तो लिख दिया, कैपिटल एम माने जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर भी लिख दिया। मैनेजर को नहीं लिखा, मैनेजर साहब कहां हो आप? मैनेजर साहब ऐसे आ रहा है आपको। Mass of Earth can be, as I told you that we have assumed it to be a sphere। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 4π3πr3 और डेंसिटी रो। और ये जो रो है ना, इसको साइड में लिख के रखो, साइड में लिख के रखो, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये ऑफ का एफ को ना ओ का साथ रहने का एकदम इच्छा नहीं है, देखो। एनीवे, बट
क्वेश्चन ये है कि भाई एवरेज डेंसिटी क्यों नहीं लिखे, बिकॉज कोर का पास मैंने उतना जियोग्राफी हमसे मत पूछना, हाँ एक्सप्लेन मत करना। कोर का पास हेवियर स्टोन्स है एंड एज वी सरफेस टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जितना ऊपर आएंगे तो डेंसिटी कम होता जाता है। सो वी हैव टू कंसिडर यूनिफॉर्म डेंसिटी, दैट्स व्हाई रो। ये बोलने का फिजिक्स में क्या इफेक्ट होगा सुनो, ये स्टोरी बोलने के लिए नहीं बोल रहा था, अब इफेक्ट क्या होगा। व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू डिफरेंशिएट एनी क्वांटिटी, रो को ना कांस्टेंट मानना। क्यों? एवरेज वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई जानना जरूरी है। तो माने समझते जाओ, देखो इजी हो जाएगा। सो इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी रो कांस्टेंट। फ्रॉम दिस आल्सो वी गेट अनदर रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, एंड दैट इज यही है। और क्या इसमें आर और आर स्क्वायर और आर क्यूब काट के ऐसे कर दो, बस यही है, सिंपल। जी इक्वल्स टू, लेकिन मैं ना ये बोलूंगा चारों को ब्रैकेट में रखो, क्यों? बाद में काम आएगा। जी ऑल आर कांस्टेंट, जो भी मैं लिखते जा रहा हूं कांस्टेंट है, किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। कैसे? जी 4/3 देन पाई, देन आर को लिखो ना रो, ये जी 4/3 पाई रो 5 बार बोलो ऐसे, देखो याद हो जाएगा। जी 4/3 पाई रो, मैं नहीं बोलूंगा 5 बार, जी 4/3 पाई रो इनटू आर। You may remember the relation between small g and capital G like this also, but ये क्या है? थोड़ा डिटेल्ड रिलेशन है, डिटेल्ड। अगर घर का अंदर चले जाओगे जी का, तो ये सब मिलेंगे जी का साथ कि 4/3 पाई रो ये इनके रिश्तेदार है, कुछ दोस्त है, ऐसे घर का अंदर। घर का बाहर से देखोगे कि जी भाई साहब कैसे हो, बाहर से हाय हेलो, तो जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर वुड बी वेरी गुड रिलेशन टू रिमेंबर, जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल्स टू, ठीक है। एंड दिस इज डिटेल्ड। एसएचएम करेंगे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब भी ये वैल्यू काम आएगा, ये रिलेशन भी काम आएगा। 4 वैल्यू याद रखने बोले थे, 5 बार बोलने बोले थे, जी 4/3 पाई रो। सो वी गॉट अ गुड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बाद में भी आ सकता है और अभी भी आ सकता है एज अ थ्योरी। नाउ वी हैव गॉट सम थ्योरीज कि हाउ वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, but according to new syllabus the 4 causes are not directly covered in our syllabus, but for competitive exams they may come, उसलिए थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है। there are 4 causes. number 1 वो है नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, वो तो हम लोग थ्योरी बनाने के लिए किए थे, प्रैक्टिकली नहीं है, उसलिए जी का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक। और किस लिए चेंज होता? हाइट के लिए। हाइट मतलब हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और किस लिए चेंज होगा जी का वैल्यू? होगा डेप्थ के लिए। डेप्थ माने इफ वी गो टू माइंस, कोलियारी में चले गए, ईसीएल, बीसीसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, है ना, या तो जयपुर में नहीं रायपुर, यस, आयरन का माइंस है। सो इफ अ पर्सन गोज इनसाइड अ माइन से बाय 300 फीट बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, देन वैल्यू ऑफ जी उतना नहीं रहेगा, इट विल डिक्रीज। और किस लिए? और ये जो अर्थ घूम रहा है ना गोल गोल, उस लिए, दैट मीन्स डायरनल मोशन ऑफ अर्थ। डायरनल मोशन माने वो रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर्स में जो घूमता है ना, दैट इज कॉल्ड डायरनल मोशन। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। ये 4 कॉजेस है, 1 2 3 4, दैट चेंजेस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एवरेज वैल्यू जो हम लोग लेते हैं ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको थोड़ा चेंज कर देगा। सो इफ देयर इज अ न्यूमेरिकल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल रहा हूं, दे मे कम फ्रॉम दिस 4 केसेस। तो ये केसेस हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा चलो थोड़ा सा कर लेता हूं। तो फर्स्ट, नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। एक्चुअली अर्थ ऐसा इतना खराब नहीं है भाई, इतना खराब नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का हेल्प लूंगा। कैसे? टेक्नोलॉजी आ जा, हाँ हो जाओ तो ये ठीक है। सो दिस इज अर्थ। अर्थ इधर हो, हाँ, सबको हाय हेलो बोलो, हो गया, बोल दिया। नाउ इसमें क्या करेंगे कि सेंटर जो होगा इसका, एंड बाय नाउ
you are well acquainted with this shape. So anyway, mathematics में अभी details में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ normal physics में रहेंगे. क्या? If this is O, so we can say that these 2 points are polar points, this point and this point. So these are poles. और ये कौन है कि ये भाई साहब ना इक्वेटर में है. भाई साहब तो यहाँ पे है ही नहीं, मैडम भी नहीं है, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्वेटर. सो इक्वेटोरियल पोजीशन में और यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस होगा. किसका? चलो ना इनको यहाँ पे लॉन्च करते हैं. भाई साहब लॉन्च हो गया आप? हाँ हो गया. कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है पोल में? बोला बहुत ठंड है. अच्छा ठीक है. तो नाउ दिस पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग along this surface of earth. करते करते ये यहाँ पे आ गए इक्वेटर में. इक्वेटर में आके अपने आप को बोला कि मैं विनर हूँ. भाई क्या जीत लिया आपने? तो एनीवे whatever the person has won, but the thing is, भाई साहब कैसा लग रहा है? वेट थोड़ा ठीक लग रहा है? वेट बोला ना, वेट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. क्यों? क्योंकि this distance is radius of earth, okay, but polar radius, and this distance of the person from the center of earth is radius of earth. ठीक है, but equatorial distance. तो इसमें क्या अंतर है? We can see this. Equatorial distance is greater than polar distance. Distance ना बोल के radius बोलेंगे. So equatorial radius is greater than polar radius. So G on equator, G at the 2 poles, उससे इक्वेटर में डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है? कॉमन सेंस से सोचो ना, कॉमन सेंस से सोचो. क्या इफेक्ट कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाएगा. दैट मीन्स एक्सीलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दैट विल आल्सो डिक्रीज. otherwise we know that G is directly proportional to 1 by r square. This is the logic. That's why इक्वेटर में G का वैल्यू कम हो जाएगा. तो G का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो this will give us this relation as well. क्या? Weight of the body m into G will be less than weight of the same body m into G pole. इक्वेटर में लोहा खरीद के, सोना खरीद के, सोना बहुत प्राइस है, सोना इक्वेटर में खरीदो, कोई कंट्री में चले जाओ, पोल में जाके किसी को बेच दो. मैंने वेट का हिसाब से बोलो, मास नहीं. और सोना तो मास का हिसाब से बिका जाता है. आई डोंट हैव दैट गुड आइडिया अबाउट दैट. एनीवे, बट ये मजाक कर रहा था. बाकी विल अ पर्सन गेन हिज और हर वेट if the person moves from equator to pole? Yes, the reading will change and it would be more on equator. Short question answer, assertion reasoning, ये सब में आ सकता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, ड्यू टू हाइट. हेडिंग दो. पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू हाइट. हाइट के लिए क्या होगा कि दिस इज अर्थ, फटाफट करो. सेंटर हो, रेडियस आर. एंड आई टोल्ड यू दैट कभी भी कोई भी थ्योरी लिखोगे तब ये करना कि लेट अर्थ बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r. यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब स्फीयर ही है, यही सोच के करेंगे. बट द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड, चलो ऑब्जेक्ट का ना अलग कलर ले लेता है. एक कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ. कौन सा? ये टाइप का. सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, और सेम ही तो हुआ कलर करीब करीब. एनीवे, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट. कहाँ पे? ऑन द सरफेस. ऑन द सरफेस. एफ ठीक ठाक नहीं हुआ. अब ठीक है. ऑन द सरफेस. अब यही ऑब्जेक्ट एम मास का ए पॉइंट से उठा के लेके चले जाएंगे बी पॉइंट में. ऑब्जेक्ट छोटा हो गया क्या? अरे दूर से छोटा दिख रहा है सेम मास तो उसका एम ही है, बट द पॉइंट चेंजेस टू बी. नो बी पॉइंट में इसका जी का वैल्यू, as I told you that as you move away from earth, its effect, that is force of attraction, decreases. So G का वैल्यू भी डिक्रीज करके G suffix H हो जाएगा. If we call this ascent or distance from the surface, याद रखना H अब से ना height from the surface होगा. H माने क्या होगा? height from the surface. Surface से
हाइट अगर h दूरी पे चले गए देन g का वैल्यू विल चेंज एज gh. व्हाट वुड बी देयर रिलेशन? एक चीज बता के रखता हूं फॉर योर कंसेप्ट पार्ट. इफ यू आर कैलकुलेटिंग एनीथिंग above अर्थ सरफेस, अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस का ऊपर या तो अवे फ्रॉम द सरफेस ऊपर में, नो प्रॉब्लम. स्मॉल g इक्वल्स टू क्या रिलेशन सीखे थे? जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर विल बी वेल अप्लाइड. बट अगर तुम अर्थ का ही अंदर चले गए, इनसाइड अर्थ, देन दैट फॉर्मूला विल नॉट बी अप्लाइड. क्यों? भूल हो गया क्या न्यूटन्स लॉ? नहीं. बट जनरल मैनेजर का मैनेजर कौन था? मैनेजर वाज मास ऑफ अर्थ. नाउ व्हेन यू एंटर द सरफेस ऑफ अर्थ, तब तो तुम अर्थ को ऊपर छोड़ के कुछ डिस्टेंस तो ऊपर छोड़ के नीचे आ गए, तो दैट अपर पार्ट ऑफ द मास जिसका अंदर चले गए तुम विल नॉट अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स द सेंटर. बाद में समझाएंगे. सिंपल जान लो, अर्थ का ऊपर, ऑन द सरफेस और अबव द सरफेस, यू कैन अप्लाई दोज फॉर्मूलास. बट एज यू गो इनसाइड अर्थ you cannot apply directly that formula. तो क्या करेंगे? तो we will see later. अभी तो फिलहाल बाहर ही है A और B, outside अर्थ, तो आराम से फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे. क्या? At A G का वैल्यू G ही है, तो वहां पे जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर अप्लाइड होगा. हाँ होगा, जनरल मैनेजर बाय आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज आर डिस्टेंस A का सेंटर से. और GH को क्या ऐसे लिखेंगे? जनरल मैनेजर, G का वैल्यू कैपिटल सेम ही है. मास ऑफ द कंप्लीट अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल टू पुल दिस एज वेल एज दिस, तो मास भी सेम ही रहेगा. दैट्स व्हाई GM एक ही रहेगा. बट द डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड एंड दैट हैज बिकम r प्लस h होल स्क्वायर. हाँ, ये इजी है. सो अगर रेशियो ले लेंगे सेकेंड बाय फर्स्ट का, GH बाई G क्या आ जाएगा? 2/1 ऐसा आ रहा है. r स्क्वायर बाई r प्लस h होल स्क्वायर उल्टा आएगा ना, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. दिस इज सच अ गुड रिलेशन फॉर योर न्यूमेरिकल्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स as well as if some schools are doing this in their theories. Such a good relation. स्टार देख के रखो ऐसे, इधर भी दोनों साइड स्टार, मैंने बल्ले बल्ले. चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. GH वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ हाइट h डिवाइडेड बाय G माने वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये दोनों का रेशियो क्या होगा? रेडियस स्क्वायर बाय r प्लस h माने तुम जितना ऊपर चले गए उसका होल स्क्वायर. दैट इज इट. तो इफ वी हैव डन दिस, ये लास्ट लाइन नहीं है. क्यों? क्योंकि क्लास 11 है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है. कैसे? तो लिखो GH बाई G इक्वल्स टू, चलो आगे बढ़ते हैं. कैसे? ये 1 डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं. r स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये तो 1 हो गया. ये कितना हो गया? देखो, r स्क्वायर बाय r स्क्वायर का अंदर चले जाओ, 1 प्लस h बाय r, 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर. समझ रहे हो? r स्क्वायर से डिवाइड कर दिए दोनों को, मतलब r स्क्वायर अगर स्क्वायर का अंदर चलेगा r होगा, r बाय r 1, h बाय r. अब 1 बाय एक्स स्क्वायर माने x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं. सिमिलरली 1 प्लस h बाय r कैन बी रिटन 1 प्लस h बाय r होल टू द पावर माइनस 1. हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ वी हैव लर्नड दैट वन प्लस h बाय r कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस h बाय r. ऐसा क्यों? ये तभी होगा ओनली इफ, क्या होगा? h वेरी वेरी लेस देन r. इसका क्या मतलब हो जाएगा? याद है मैं बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया था. इफ वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज तो h. सो अगर ये मूवमेंट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत बहुत कम है, लाइक बुर्ज खलीफा का छत में चले गए, तुम्हारा बिल्डिंग का छत में चले गए, दोज हाइट्स आर सो स्मॉल कंपेयर टू h, उसी को ऐसे लिख रहा हूं, h वेरी वेरी लेस देन r. तो तब क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर h वेरी वेरी लेस देन r होगा, तब तो h बाय r वेरी स्मॉल नंबर होगा ना. h बाय r वुड बी वेरी स्मॉल नंबर. मान लो ना h को ले लिया 10 मीटर और r है 6400 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर बनाए तो देख रहे हो कितना आएगा? ये 0.000 ऐसा आएगा.
तो उसको लिखना ना लिखना एक ही बात है, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। सो एज दिस इज वेरी स्मॉल, मैं तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरी का मैथमेटिकल वीडियो दिया था यूट्यूब में, मैथमेटिकल वीडियो, क्या 1 प्लस स्मॉल नंबर टू द पावर एनीथिंग, 1 प्लस स्मॉल नंबर, मान लो एक स्मॉल नंबर है, टू द पावर एनीथिंग है, तो अगर x वेरी वेरी स्मॉल है, ये अगर बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, किससे? 1 से, तब क्या करेंगे? तब ये पावर सामने मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये बाइनोमियल थ्योरम में किए हो या तो करोगे, अगर नहीं भी करोगे तो ये कर लो कम से कम। दिस इज वेरी इजी आइडिया। हीट में भी एप्लीकेशन होगा, SHM में एप्लीकेशन होगा, क्लास 11 में 3 बार एप्लीकेशन होगा इसका, 3 चैप्टर्स में, तो एक ही बार सीख लो। 1 प्लस स्मॉल नंबर टू द पावर एनीथिंग, दैट एनीथिंग वाला जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इसका पावर कितना था? इसका पावर था इसका इंटेलिजेंस और रेगुलरिटी, रोज स्टडी करता था। ओ अच्छा, मैं तो -1 का, मैं सोचा तुम लोगों का पावर -1 इसको will be multiplied by h by r, तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus h by r will become 1 minus h by r। ऐसा क्यों किए? Because h by r very very small। किससे? तो smaller than 1। अब तो ठीक है, और ये पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, स्टार देके रखो, ये सिर्फ सीखने के लिए है। दिस पार्ट हो गया। सो GH, अगर G को मल्टीप्लाई कर दोगे G इंटू 1 माइनस, अच्छा एक सेकेंड, ये -1 तो नहीं था, -2 था, तभी सोच रहा हूं ये -2 कर देना, ये 2h by r होगा। सो 1 माइनस 2h by r, इसको चेंज करो। GH इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस 2h by r। चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कम लाइक दिस, इफ गोइंग टू अ हाइट h, the value of gravitational acceleration decreases by 75%। 75% डिक्रीज हो गया, G का वैल्यू ऊपर जा रहा है, देन H इक्वल्स टू x इंटू r। फाइंड x, ये x का वैल्यू कितना होगा? r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये है r, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये x का वैल्यू कितना हो जाए? So this formula is wrong, this formula, because h very very less than r, we are not sure about this because we don't know h। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? g by gh, या तो gh by g, चलो gh by g लिख रहा हूं, रेडियस उल्टा करना, g के लिए r और gh के लिए r प्लस h, इसका होल स्क्वायर, g प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। नाउ ये दिया हुआ है 1/4 हो गया, तो 1/4 इक्वल्स टू r बाय r प्लस h होल स्क्वायर। फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट करो बोथ साइड का, ये हाफ आ जाएगा, r बाय r प्लस h। फ्रॉम दिस h इक्वल्स टू r, 2r इक्वल्स टू r प्लस h, h इक्वल्स टू r, अरे h इक्वल्स टू r, सो x का वैल्यू 1। यस, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड, very good। So here x equals to 1। বাহ, ভালো লাগলো এটা, রাইট আনসার। দেখছো তো, তোমরা নিজেরাই পারছো। नेक्स्ट पार्ट इज डेप्थ। ये डेप्थ का जो है ना, डेप्थ, इसका डेरिवेशन
और नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सम बनाने के लिए फॉर्मूला है, बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बैच में करेंगे देन वी विल डिराइव दैट, ठीक है। तो नंबर 3, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के लिए g का वैल्यू एट अ डेप्थ x वुड बी गिवन बाय, फॉर्मूला को सिर्फ लिख कर रखो, g इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, और उसका पिक्चर ड्रॉ करके रखो। इफ दिस इज अर्थ, ठीक हुआ, मोटा मोटी सर्कल हुआ है। अच्छा चलो, हमसे तो होता नहीं है। चलो, इफ दिस इज अर्थ एंड इफ, अगर मान लो दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज बीन टेकन इनसाइड अर्थ, अर्थ का नीचे लेके चले गए, माइंस, कोलियरी, तो दिस मास इज नाउ हियर। तो बताओ which part of earth will be attracting it? इसका नीचे, अरे ये सर्कल तो टेढ़ा हो गया। This part of the sphere will attract this mass now because इसका नीचे अब इतना ही पार्ट है अर्थ का, तो दिस पार्ट ऑफ अर्थ विल नॉट अट्रैक्ट दिस मास। क्यों? ये मास नीचे आ गया, सो इसको पीछे छोड़ के आ गया। दैट मीन्स द अपर पार्ट और द साइड पार्ट, इसको बोला जाता है एन्युलर पार्ट, दिस पार्ट विल नॉट अट्रैक्ट दिस मास m। तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? ओनली दिस मास। सो दैट्स व्हाई वी मेक अ सिंपल चेंज। अच्छा चलो, इसको मैं कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट थ्योरी डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। सरफेस में g का वैल्यू g, डेप्थ में आ गए x, अब g का वैल्यू gx। तो देखो g का ना अब डिटेल फॉर्मूला लिखूंगा, डिटेल फैमिली वाला, दोस्त वाला रिलेशन। g का क्या था? g, 4 दोस्त थे इसका, मतलब देयर वर 4 फ्रेंड्स, g 4/3 पाई और एवरेज डेंसिटी रो इनटू डिस्टेंस r, सेंटर से दूरी कितना था a पॉइंट का r। अब जब b पॉइंट में आ गए तब डिस्टेंस कितना हो गया? देन gx वुड बी गिवन बाय, ये चारों कॉन्स्टेंट्स है, सेम रहेगा वेर एवर यू टेक द बॉडी टू, पाई एंड रो। ओनली आर डिस्टेंस इनिशियली ए पॉइंट का अब बन जाएगा कितना डिस्टेंस व्हेन इट रीच पॉइंट बी, बी पॉइंट में ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एक्स नीचे आ गए, सो यू आर एक्स डिस्टेंस लेस देन आर, तो ये कितना हो गया? आर माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2/1 gx by g लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर डिवाइड करोगे, ये ब्रैकेट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस, तो क्या बचेगा? तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा? r by r 1 माइनस x by r। तो इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा? ये, दिस वुड बी द नेक्स्ट लाइन। सो दैट्स इट। अच्छा, एक चेक करके देखते हैं, एट द सेंटर, सेंटर तक अगर ये बॉडी आ चुका है नीचे, तले, तब क्या हो जाएगा? एक्स ही आर हो जाएगा, समझ रहे हो? जितना नीचे आ रहा है दैट इज एक्स, तो नीचे आते आते इफ द बॉडी रीचेस द सेंटर, तब तो दिस एक्स हैज इंक्रीज्ड टू आर, आर बन जाएगा एक्स का वैल्यू, तब ये जी एक्स कितना होगा? एक्स बाय आर, तो ये एक्स तो अभी कितना हो गया? आर, ये तो 1 माइनस 1 0। अच्छा, इसलिए सेंटर ऑफ अर्थ में g का वैल्यू 0 आता है, दैट्स व्हाई एट द सेंटर ऑफ अर्थ g का वैल्यू 0 आता है। और लास्ट वाला फॉर्मूला ये लिख लो, सिर्फ डायरनल मोशन ऑफ अर्थ। होता क्या है कि इफ दिस इज अर्थ, एक बार दिखा रहा हूं, फिर भी ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाऊंगा सिर्फ फॉर्मूला बता के, क्योंकि दैट इज नॉट फिजिक्स, ओनली फॉर्मूला। This is the axis of Earth, own axis. Earth rotates from west to east. Geography ज़्यादा मालूम नहीं आता है, told you earlier. थोड़ा सा मालूम है इतना। Earth rotates from west to east, okay? बाकी रोटेट करने से क्या होगा? रोटेट करने से if there is a body placed on Earth, हो सकता है this is a building, this is us, कोई भी एनीथिंग दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ अगर ऐसे घूमेगा तो अर्थ का तो रेडियस ये है, लेकिन ये बॉडी जो घूमेगा इसके ऊपर ऐसे घूमेगा ना, इसी जगह पे रह के घूमेगा, दैट मीन्स दिस बॉडी
would also be rotating but with a radius not equal to the value of radius of earth but smaller. जैसे ऐसे घूम लिया तो there would be a centrifugal force acting on the body. कितना? m ओमेगा स्क्वायर r. ये r जो होगा स्मॉल r होगा. अच्छा, अब सोचो थोड़ा. What is the weight mg? इसका वेट किधर है? वेट ऑफ अ बॉडी हमेशा ऐड करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. इसका वेट mg इधर ऐड करेगा, सेंटर ऑफ अर्थ. हाँ, तो वेट का साथ इसका क्या रिलेशन है? डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है. कैसे इनडायरेक्ट? mg को m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर सर्कल का ऑपोजिट में होता है, वो हेल्प कर रहा है ना अपोज कर रहा है? डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, दिखाने दे रहा है. तो इनडायरेक्ट माने आई वांट टू से दैट इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स m ओमेगा स्क्वायर r. तो इसमें से हम लोगों को ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, हम लोगों को देखना है इसका कौन सा कंपोनेंट है कि इतना हिम्मत कि mg को अपोज करेगा. यस, आजकल कुछ भी हो सकता है, AI का जमाना है. AI से पहले भी अपोज करता था, ऐसा बात नहीं है, अभी भी अपोज करेगा. बट फॉर दैट वी नो that we need to find the angle, तब जाके इसका कोई कंपोनेंट cos थीटा करके निकलेगा. नाउ जियोग्राफी का और एक चीज लगेगा यहाँ पे, बोलने से अच्छा नहीं लगता मुझे. एनीवे, दैट इज लैटिट्यूड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एंगल इज लैटिट्यूड. देखो, रेडियस को, ये मान लो अर्थ है गोल स्फेरिकल, रेडियस को जितना घुमाएंगे ऐसे गोल करके 0 डिग्री, रेडियस को थोड़ा सा ऊपर उठा लिए, देन इफ यू रोटेट इट यू गेट अनदर पैरेलल सर्कुलर लाइन, सपोज 1 डिग्री. रेडियस को और उठा लिए, ये हॉरिजॉन्टल का साथ, ये घुमा लिए, और उठा लिए, ये घुमा लिए. सो ये रिंग 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 लेके ही तो पूरा स्फीयर बना है ऐसे. सो इसको कितना उठाए ऊपर? लैम्डा. दिस इज कॉल्ड, क्या बोले ये लैम्डा का नाम क्या बोले? लैम्डा इज लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस. कौन सा प्लेस? जहां पे ऑब्जेक्ट है उस प्लेस का लैटिट्यूड अलग अलग होता है, एंड यू नो दैट वेरी वेल. So if latitude of the place is lambda, तो ये एंगल भी लैम्डा ही होगा. देखो करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो m ओमेगा स्क्वायर r का एक कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इधर ही होगा. तो नेट वेट ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? देखो नेट वेट, वेट माना तो फोर्स, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में देखो तो क्या बच गया? नीचे mg, ऊपर में m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा. बस हो गया, इतना है. m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा. फ्रॉम दिस m तो कॉमन ले लिए, g कौन है? g इज द वैल्यू ऑफ अर्थ, जबकि g जो है ना, वैल्यू ऑफ अर्थ नहीं, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. ग्रैब ACC माने एक्सीलरेशन, व्हेन द अर्थ is not rotating about its own axis. रोटेशन के लिए तो कुछ इफेक्ट हो रहा है. अगर रोटेशन होता नहीं तब कितना होता g का वैल्यू? दैट इज g. क्यों? बाय फोर्स mg, तो एक्सीलरेशन होता है mg बाय m, दैट इज g, दैट्स इट. लेकिन क्योंकि ये घूम रहा है तो इसका एक कंपोनेंट उसको हल्का कर देगा, फोर्स को कम कर देगा. व्हाई? बाय अपोजिंग इट, बाय एक्टिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वो कितना है? ओमेगा स्क्वायर r. r cos थीटा, ये r मुश्किल है. देखो ये r का, इफ दिस इज अर्थ, दिस इज स्मॉल r, दिस इज सेंटर, दिस इज कैपिटल R, और ये एंगल अगर लैम्डा है ना, ये एंगल, तो ये एंगल भी लैम्डा ही होगा. एंड फॉर दैट वी कैन से फ्रॉम दिस पिक्चर दैट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R का ना cos लैम्डा होगा. स्मॉल r, ये ट्राइंगल से, सिंपल ट्राइंगल. देखो कैपिटल R cos लैम्डा. चलो स्मॉल r को चेंज कर देता हूं, कैपिटल R cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा, तब तो cos स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा. एक कैपिटल R cos लैम्डा बिकम्स इन प्लेस ऑफ स्मॉल r, और साइड में और एक cos लैम्डा. बस यही फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला. ये तो फोर्स का फॉर्मूला है. एक्सीलरेशन कैसे? तो एक्सीलरेशन A हो गया डेरिवेशन. फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन
rotating earth is this much. So acceleration of that body on rotating earth a ना बोल के अब से g बोलेंगे. तो g तो जब नहीं घूम रहा था तब होगा, तो जब घूम रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? For rotating earth, like the present case that we are having, this g, earth तो rotate कर रहा है, that g is called g lambda. नोटिस करके देखो, जब हाइट के लिए g चेंज हो रहा था gh, जब डेप्थ x के लिए चेंज हो रहा था gx, अब जब लैम्डा लैटिट्यूड के लिए g अलग अलग होगा हर एक पॉइंट ऑफ अर्थ के लिए, that's why g suffix lambda. That would be given by force by mass. तो ये मास कट जाएगी, मास से डिवाइड कर देंगे, so this thing remains and that is the answer. g minus omega square r cos square lambda. इसमें से g can be taken common, omega square r by g cos square lambda. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होके रखा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं है. सो इफ यू आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थ्योरी, स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए डॉट 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 नहीं बोलेंगे. और नाउ इफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत ही काम आएगा. इफ दिस इज द फॉर्मूला, सिर्फ ये जान के रखना, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी जो है ना, देखने से लग रहा है कि बाप रे क्या टफ है, ये टफ नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो जानने से अच्छा लगेगा. क्या? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ओमेगा ऑफ अर्थ, ये कैसे जानेंगे भाई? सिंपल है, ओमेगा माने 2 पाई बाई कैपिटल टी. बताओ ना, 2 पाई डिवाइडेड बाई अर्थ का कैपिटल टी कितना है? 24 आवर्स. 24 आवर्स अर्थ का कैपिटल टी. तो उस हिसाब से 24 आवर्स को अगर सेकंड बना दोगे तो 86,400 सेकंड होता है एक दिन में. 24 आवर्स माने 1 डे. तो यहां से क्या ओमेगा नहीं मिल जाएगा? यस मिल जाएगा. आर नहीं जानते हम लोग, 6400 किलोमीटर, उसको मीटर बना देंगे, आर भी मिल गया. ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी का वैल्यू नहीं जानते, 9.8 जानते हैं. तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड वैल्यू, 1/289. किसी का स्क्वायर लग रहा है, ये 289 तो किसी का स्क्वायर हो जाता है. 1/289 17. सो यहां से और एक आइडिया बता कर रखता हूं, क्योंकि ये ऐसा होता है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इतना, तो वो बोलने से अच्छा देखो, तो जी लैम्डा एट इक्वेटोरियल पोजीशन, कोई भी इक्वेटोरियल पोजीशन का एक कंट्री को सोच लो. यू हैव बेटर जियोग्राफी आइडिया देन मी. इक्वेटोरियल पोजीशन में लैम्डा ना 0 डिग्री होगा, समझ लो. लैम्डा देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है दैट इज एंगल इज लैम्डा. तो एंगल अगर नहीं हुआ तो ये रेडियस इक्वेटर के ऊपर ही होगा. तो कोई भी एक कंट्री ले लो अर्थ का ऊपर जहां पे लैम्डा 0 डिग्री है, तो लैम्डा इज 0 डिग्री, देन क्या होगा देखो, g इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ये था तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी. तो मैं ये बोलना चाहता हूं एट इक्वेटोरियल पोजीशन लैम्डा 0 डिग्री, ठीक है. इफ Earth suddenly starts rotating with, मान लो अगर ऐसा हो गया 17 times the present speed, आज का स्पीड का 17 टाइम स्पीड से घूमना शुरू कर दिया. मान लो न्यूक्लियर नहीं, वो सब नहीं हुआ, कोई भी दूसरा कारण से, इमेजिनरी केस. अगर ऐसा हो गया तो ओमेगा डैश विल बी 17 टाइम्स प्रेजेंट ओमेगा. अगर ऐसा हो गया तो देखो अब क्या हो जाएगा, जी लैम्डा इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी था ना, वो हो जाएगा ओमेगा डैश स्क्वायर आर बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा. कॉस स्क्वायर लैम्डा कितना हो जाएगा? 1 कॉस 0 डिग्री. तो जी इंटू ये ओमेगा डैश तो इतना है 17 ओमेगा का स्क्वायर, तो मतलब 17 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, जी इंटू 1 माइनस, अरे ये 17 स्क्वायर, ये भी तो 1/17 स्क्वायर हुआ था, याद करके देखो, ये तो कट जाएगा. 1 माइनस 1, अरे 0. भाई साहब
जी का वैल्यू 0, जी लैम्डा, दैट मीन्स प्रैक्टिकली समझ के सोचो कि इफ द अर्थ नाउ रोटेट 17 टाइम्स फास्टर, तब तो ये पार्टिकल निकल ही जाएगा अर्थ छोड़ के, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? दिस इज नॉट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नहीं है। जो इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा वो सारे ऑब्जेक्ट्स भाग जाएंगे, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लाई अप टू स्पेस। उसलिए इक्वेटर में घर मत खरीदना, हाँ, बिल्डिंग फ्लैट कुछ मत खरीदना, क्योंकि 17 टाइम्स स्पीड अगर हो गया, फ्लैट बिल्डिंग सब स्पेस में है। अब स्पेस में ये सब नहीं चलता है, स्विगी जोमेटो नहीं चलता है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा कि इफ द अर्थ 17 टाइम्स स्पीड बढ़ा लेता है, माने बनता है स्पीड इसका, तब इक्वेटोरियल पोजीशन में एनीवेयर वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 0। फन फैक्ट है, ऐसा करके पढ़ो, इजी लगेगा। ठीक है, चलो, वी आर क्लियर विद द वेरिएशन ऑफ जी। अब आ जाएगा मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, इस चैप्टर का मेन पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो आज थोड़ा सा, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या मेन पार्ट इज दिस, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन तो इट्स इजी, होने दो। तो मेन पार्ट इज दिस, कौन सा पार्ट? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये एक मास है, मान लो कैपिटल है, तो इसका चारों तरफ अराउंड दिस रीजियन जो है ना, ये जो जगह है, दिस रीजियन 3D, लेकिन 3D स्पेस, द रीजियन अराउंड इट is called gravitational field of mass m. तो this is gravitational field of mass, कौन सा मास रखा हुआ m उसके लिए, और ये जगह खाली है, empty, but it has got an effect। कौन? ये कैपिटल M। क्या इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ पुलिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। अगर ये अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का अंदर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आ गया ऑफ मास स्मॉल m, बस ये इट विल अट्रैक्ट इट। इसका अंदर कोई आ गया, इट विल अट्रैक्ट इट। इसका अंदर कोई आ गया, इट विल अट्रैक्ट इट। तो 1, 2 और 3 पोजीशन में से, डू यू अंडरस्टैंड दैट पोजीशन 3 में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सेम मास विल बी मच हायर, स्ट्रॉन्गर देन पोजीशन 1 में। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड हैज अनदर टर्म टू बी डिस्क्राइब्ड। क्या? इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कभी कभी हम लोग इसको E लिखते हैं। Gravitational field intensity is force experienced by a unit mass placed in its gravitational field। तो वो E हो जाएगा कितना? Force on a unit mass। एक्चुअली इसे बोलते हैं फोर्स ऑन अ टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या होता है? टेंड्स टू 0 पर यूनिट वैल्यू ऑफ द मास। बफॉर एनीवे उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, सिंपल माने क्या है, 1 kg का मास रख दिया, 1 kg का। जैसे कहीं पे लाइट है कि नहीं है, हम लोग टेस्टर से टेस्ट करते हैं ना कि हाँ दिस लाइट इज एक्टिव, दिस लाइट, वैसे 1 kg मास को रख देंगे। क्या दैट 1 kg मास गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, बस हो रहा है तो बस चलो वहां पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। कितना स्ट्रांग है ना, ये 1 kg मास के ऊपर जितना फोर्स होगा, द अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से चलो फॉर्मूला, फोर्स ऑन यूनिट मास, तो कितना हो जाएगा? जी एम इनटू सेकेंड मास जो m है उसको 1 बना देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये दोनों का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। Oh, this is the formula of gravitational field intensity. That means gravitational field intensity is given by G m, जनरल मैनेजर हो गया, डिवाइड बाय r स्क्वायर, और बाकी जो और एक m था, m1 m2 और दूसरा m 1 kg हो गया, because that is the definition of gravitational field intensity। क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, बोल रहा हूं मैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हुआ? और उसका फॉर्मूला gm/r²। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? फील्ड मतलब क्या? मान लो कि यहाँ पे कल्लू भाई है, कल्लू भाई का फील्ड है पूरा मोहल्ले में,
कि कल्लू भाई का नाम ले लिया दुकान से और सामान फ्री, तो वी से दैट दिस इज मोहल्ला इज द फील्ड ऑफ कल्लू भाई। सिमिलरली मान लो लल्लू भाई बोल के कोई है, उनका फील्ड पूरा शहर में है, तो द फील्ड ऑफ लल्लू भाई इज पूरा शहर। सिमिलरली मास एम का फील्ड है इतना तक, कितना तक, दैट वी वांट टू नो। मोहल्ला ना शहर, ना कि पूरा कंट्री, या तो पूरा दुनिया, ना कि स्पेस। सो लेट अस फाइंड दैट। स्पेस जो बोला ना, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? सुन के हंसी आ रहा है कि तो ये जो पेन है मेरा लिखने वाला, क्या इसका ये इट ऑल्सो हैज सम मास? यस। सो क्या इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है? दैट मीन्स अप टू व्हाट डिस्टेंस विल दिस पेन अट्रैक्ट अदर मासेस? इंफिनिटी है, इंफिनिटी। ये कैसे पॉसिबल, देखते हैं। अच्छा, तो ये पेन का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां नहीं है? जहां पे नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे कितना आएगा? 0। मतलब इट विल नॉट अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी। तो देखते हैं पेन का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 कहां पे होता है। तो एक काम करता हूं, ई का वैल्यू 0 बैठा देता हूं, इक्वल्स टू जनरल मैनेजर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब ना जी का वैल्यू 0 है, ना ही मास ऑफ दिस पेन इज 0, तो ये 0 होने का एक ही और लास्ट चांस है, दैट इज आर हैज टू बी इनफाइनाइटली लार्ज। इसका माने क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड का और एक एट्रीब्यूशन इसका साथ जोड़ लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी मास। एनी मास माने पेन इतना छोटा सा, ऑफ एनी मास, मास 1 ग्राम हो चाहे 1 लाख ग्राम हो, माने केजी हो, ऑफ एनी मास extends up to infinity। very important। क्यों important? क्योंकि अभी तो काम आया क्लास 11, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सब में सेम आइडिया है, फॉर्मूला एकदम सेम, डीटो व्हाट एवर यू आर लर्निंग नाउ, कंसेप्ट एकदम सेम, डीटो व्हाट एवर यू आर लर्निंग नाउ। सिर्फ हाँ, क्वांटिटी मास का बदले में चार्ज हो जाएगा, कांस्टेंट जी का बदले में कुछ और आएगा, दैट इज द डिफरेंस। बाकी आइडिया कंसेप्ट सब सेम है। तो चलो इतना तक सीख लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हेडिंग दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे वी हैव लर्नड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हम लोग सीखे थे क्लास 10 में। क्या ना? इट इज द वर्क डन। सिंपल है, वर्क डन है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग अ मास। कहां से मास को लाना है? यू नो दिस वेरी वेल, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। कहां पे ये पॉइंट? कहां पे? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ, या तो एट अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इतना तक ही रहने दो, बस सिंपल रखते हैं इसको। वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। पॉइंट कहां पे? ग्रेविटेशनल फील्ड में। मतलब सपोज दिस इज अ मास m, सपोज दिस इज अ मास m, नाउ इट हैज गॉट इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक? अप टू इंफिनिटी। तो इससे इंफिनिटी डिस्टेंस में देखो, फॉर्म लाइन माने फाइनाइट डिस्टेंस, और जैसे डॉट डॉट कर देता हूं दैट मीन्स इनफाइनाइट। सो लेट अस अज्यूम दैट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ये एक मास है। कौन मास? हम लोगों का हीरो, ये चैप्टर के हीरो कौन है? यूनिट मास। यूनिट मास माना 1 मास से 1 kg। kg मत लिखना, सिर्फ 1 लिख दो। तो 1 मास को रखा हुआ है, या तो ऐसा कर सकते हो m इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हो, स्मॉल m, और इसका मास तो कैपिटल m है। नाउ फ्रॉम दिस वी आर ब्रिंगिंग दिस क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू कैपिटल m। फाइनली कहां तक लेके आएंगे? यहां पे m इक्वल्स टू 1 आ गया। ये यहां पे माने कहां पे? कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, कहां पे? r डिस्टेंस यहां तक लेके आए। स्टार्ट कहां से किए थे? इंफिनिटी। अच्छा, तो रास्ते में कभी बीच में तो यहां पे भी आए हुए थे? हाँ, यस, इट केम हियर ऑल्सो। तो यहां पे जब आया हुआ था, इसको बोलेंगे एनी पोजीशन। तो इट समटाइम केम टू एनी पोजीशन।
ये जो एनी पोजीशन होगा दैट वुड बी एट एनी डिस्टेंस x, एनी डिस्टेंस मतलब ये मास का 3 पिक्चर है, स्टार्ट किया, आते 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 एट एनी मोमेंट इसका फोटो लिए, वो स्माइल किया, एंड देन फ्रॉम दिस वी विल गेट द जनरल कंडीशंस, एंड देन फाइनली इट स्टॉप्ड हियर। ये लास्ट कंडीशन है, दीज आर द 3, ये फर्स्ट, लास्ट और ये जनरल, ठीक है। तो जनरल कंडीशन किसका कंडीशन भाई, ये कैपिटल M विल अट्रैक्ट दिस मास, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसको F बोलता हूं, जनरल फोर्स। तो F कितना हो जाएगा, F वुड बी गिवन बाय G M जनरल मैनेजर इनटू 1, क्यों G M1 M2 डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस, देखो ना इसका और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस, मैं ऐसा करके मत सोचो, डिस्टेंस ये है सीधा x। So this is the force acting at any position. ठीक है, हजम करो इसको। तो एनी पोजीशन में अगर ये फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है बिकॉज इट कंटेन्स x। सो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोगों को क्या निकालना, क्या है मेन निकालना, ये वर्क डन कितना करना है यहां से यहां तक लाने में, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r दूरी तक। तो वर्क डन इतना करेंगे, कितना, इंटीग्रेशन f dx, वर्क पर एनर्जी चैप्टर में सीखे थे हम लोग कि अगर फोर्स कांस्टेंट है देन वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट, इंटीग्रेशन f dx, सिंपल बात है। तो इंटीग्रेशन एफ डी एस कहां से कहां तक, लिमिट बैठाना पड़ेगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी जहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड अपर लिमिट आर जहां पे खत्म हो रहा है, बस यही है। कभी कभी लगता है कि हम लोग भी जब ऐसे सीखते थे, आज भी अगर कुछ सीखते हैं कहीं से, तो वहां पे ये बोला जाता है बस इतना सिंपल है, बस ये कर लो, तो लगता है कि व्हेन आई एम अ लर्नर कि इतना सिंपल है, मेरे लिए तो है बहुत टफ है, ऐसा होता है, बट इट विल बिकम सिंपल, डोंट वरी। तो इन्फिनिटी टू r, f का बदले में ये वैल्यू बैठा दो, क्या g m बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बस यही है, वही जो बोल रहा था, इजी है। वाई, अब जनरल मैनेजर तो कांस्टेंट बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन x dx बाई एक्स स्क्वायर, मैं साइड में दिखा देता हूं, देखो dx बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे सोचो, इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है ठीक से उसके लिए बता रहा हूं, इसको ऐसे सोचो, इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx। अब -2 है इसका पावर, तो आफ्टर यू इंटीग्रेट दिस, आफ्टर, तो यहाँ पे जगह नहीं है, बना लेता हूं जगह, आफ्टर यू इंटीग्रेट दिस, ये क्या हो जाएगा देखो, इक्वल्स टू x का पावर एक बढ़ जाता है -2 + 1 डिवाइडेड बाय नीचे वो पावर आ जाता है -2 + 1, तो c कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूं, तो मैंने x टू दी पावर कितना हो गया देखो, -1 नीचे -1, -1 के लिए माइनस, और x टू दी पावर -1 माने 1/x, ये हो जाता है इंटीग्रेशन। अब मैं क्या बोलूं कि एक बार लिख देना dx बाई एक्स स्क्वायर, फिर ना यू नीड नॉट टू शो द कंप्लीट इंटीग्रेशन प्रोसेस, तो डायरेक्ट कर दे इसको ऐसे। वंस यू रिमेंबर दिस, बार बार आएगा ये इंटीग्रेशन, जिसका मैथ्स नहीं है प्लीज रिमेंबर दिस आंसर, जिसका मैथ्स नहीं है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर -1/x लिख दे रहा हूं मैं, gm, तो आया ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन कर लिए इंटीग्रेशन, क्या आ गया -1/x, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ये आ गया। तो अब का पार्ट मैं दूसरा कलर से करता हूं, तो बस यही आंसर है, -1/x लिमिट इन्फिनिटी टू r, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, माइनस बाहर आ गया, gm तो है ही बाहर, 1/x, x का बदले में r पुट करेंगे तो gm/r, और अगर x का बदले में लोअर लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी, तो 1/∞ होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यही आंसर है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, जैसे वोल्टेज लिखते थे ना पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वुड बी गिवन बाय -gm/r। इसका माने क्या हुआ मैं बता रहा हूं नेक्स्ट पेज में। सपोज दिस इज अ मास कैपिटल M,
ये इजी पिक्चर, इसको ड्रॉ करो, मे बी डेरिवेशन नहीं आया लेकिन साम आएगा, इसको ड्रॉ करो। तो फॉर दिस स्मॉल m देयर वुड बी अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। हाँ, तो इसको ड्रॉ नहीं करना। इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आते आते, इन्फिनिटी से लेके आते आते, इफ यू हैव प्लेस्ड इट हियर, कितना मास है? 1 मास। तो जितना वर्क डन इन्वॉल्व हुआ ये करने के लिए, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड हियर। मैं वर्क पर एनर्जी चैप्टर में बोला था, इफ पोजीशन चेंजेस देन द वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, बोला था। तो पोजीशन चेंजेस फ्रॉम द इंफिनिटी टू दिस पोजीशन, तो यहां पे जो वर्क डन की एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्या होगा? स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिर्फ पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यूनिट मास लेके आए हैं, तो यूनिट मास में इतना वर्क डन करते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वो ये पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा r दूरी पे, दिस पॉइंट के लिए वो हो जाएगा v इक्वल्स टू एट दिस पोजिशन, v इक्वल्स टू माइनस साइन रहेगा gm/r, बस। बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे? बिकॉज when we talk about gravitational potential energy, then work done in bringing, फिर हम लोगों का चैप्टर का हीरो कौन था? यूनिट मास, 1 मास ना, पोटेंशियल एनर्जी का टाइम हो जाएगा इन ब्रिंगिंग एनी मास। मतलब 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एम मास 10 केजी, 20 केजी, 10 लाख टन, कुछ भी हो सकता है। चांद को लेके आ गए अर्थ में, बहुत बार कोशिश किया है, माने इन पोएम्स। तो पोएम्स में नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी मास m फ्रॉम, कहां से लेके आना है? तो लिमिट सोच लो, इंफिनिटी टू अ पॉइंट कहां पे होगा? वही इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा कोई मास के लिए फील्ड होगा वहां पे, इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ? इससे क्या सीखे? दिमाग लगाओ थोड़ा। लास्ट बार कितना मास को लाए थे? 1 मास, वर्क डन इतना। इस बार m मास को लाएंगे, तो m 1 का बदले में अगर m बैठा देंगे तो दिस वर्क डन विल बी m टाइम्स 1 kg मास को लाने में अगर इतना वर्क डन w, तो 10 kg मास को लाने में 10w, m kg मास को लाने में 10 m टाइम्स ऑफ w। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल PE, इसका भी डेरिवेशन आ सकता है, लेकिन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, डेरिवेशन में क्या करना? थोड़ा डेयरिंग करना। डेरिवेशन में क्या डेयरिंग? m मास को 1 मत लिखना, जस्ट कीप इट m। तो क्या हो जाएगा? m लिखोगे तो जितना बोलने में टाइम लगता है ना, करने में उतना नहीं लगता है। इंफिनिटी टू r f dx, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन f dx, इंफिनिटी टू r, f का बदले में क्या लिख देंगे? gmm/r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर इंटू dx। पिछला बार क्या किए थे? देखो चेंज को देखो तो ये याद रख पाओगे। देखो gm/x स्क्वायर किए थे, फोर्स का बदले में कितना लिखे थे? gm/x स्क्वायर, फोर्स का बदले में लिखे थे। इस बार क्या कर रहा हूं? gmm/x स्क्वायर। क्यों? इट वुड बी m टाइम्स मोर फोर्स इफ द मास इज m टाइम्स, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। फिर वही जो इंटीग्रेशन बोले डायरेक्ट कर देने का, क्या? gmm बाहर आ गया बीइंग कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन का अंदर कौन फंस गया? dx/x स्क्वायर इंफिनिटी टू r। मैं तो बोला हूं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोगों का पास, क्या? -1/x इंटीग्रेशन, अभी तो करके दिखा है, इंफिनिटी टू r। मतलब कितना हो जाएगा? माइनस बाहर, gmm बाहर,
x का बदले में r बैठाएंगे तो माइनस तो बाहर चला गया, तो 1/r माइनस x का बदले में लोअर लिमिट इन्फिनिटी बैठाएंगे 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी माने 0 सेकेंड टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा माइनस GMM/r। ये वर्क डन ही होगा इतना, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वुड बी वर्क डन which is equal to minus GMM/r। ये बहुत बड़ा सीखे आज, बहुत बड़ा थ्योरी सीख लिया है, बहुत बड़ा थ्योरी। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में फिर से हेल्प होगा, इस चैप्टर में हेल्प होगा, ग्रेविटेशन में तो हो ही रहा है, मैग्नेटिज्म में भी हेल्प होगा। माइनस GMM/r, इसको भी 5 बार दोहरा लो, जस्ट रिपीट इट 5 टाइम्स। माइनस GMM/r is the potential energy between two masses। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का माने जानते हो क्या है? इन्फिनिटी से इसको लेके आए, इन्फिनिटी से इसको भी लेके आए। ये दोनों मासेस को लेके आने में जो वर्क डन हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी, ये दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r, इन्फिनिटी से इसको लाए, फिर वी मेड एन असेंबली ऑफ दीज टू मासेस। We made an assembly, assemble किए दोनों masses को, कहां से लाके? इन्फिनिटी से लाके। So the work we did for this, bringing them closer, कितना? r distance में, that is stored within them, within the small m नहीं, within the both the masses, दोनों मिला के ये system of two masses stores a potential energy। कितना? माइनस 5 बार दोहराने बोले थे GMM/r। ये दोनों मिला के GMM/r पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, दोनों मिला के। सो दिस इज माइनस GMM/r माने। तो इसका और एक माने है, और वो माने से ना जंग छिड़ जाएगी पूरा, मतलब यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। कैसे? इफ देयर आर 3 masses, सपोज M2 एंड M3, सपोज ये दोनों का डिस्टेंस R1, R2 नहीं, R1, ये R2 और ये R3। Then to bring all these 3 masses from infinity and from infinity, ये तीनों को लेके आके to assemble these 3 masses, the work we did is stored within these 3 masses और 3 mass system as potential energy। ये है कंसेप्ट। ये 3 मास वाला जो सिस्टम बना, इसका अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर है। वो कितना होगा? टेक्निक सीखो भाई, वो सब थ्योरी ठीक है, लिखने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ना ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल भी दिया, बट व्हेन यू डू न्यूमेरिकल आइडिया समझो। ये दोनों को लेके आए तो वर्क डन कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM1 M2, ये तो M1 M2 बाय डिस्टेंस कितना दोनों का? R1। इतना वर्क डन किए दोनों को। अच्छा, ये दोनों को लाने के लिए कितना वर्क डन किए? दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर दीज टू। भाई उसके लिए तो इतना किए माइनस GM2 ना, वो M1 ऑपोरेट M1 ऊपर वाला M1 M3 डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का R3 प्लस, अच्छा ये दोनों को भी तो लेके आए, and these two also forms an assembly of systems of system of 2 masses M2 M3, so minus GM2 M3 by दोनों का डिस्टेंस R2। this is the total P of the system। of 3 systems like this। मतलब क्या? अरे मैथ्स में जो लोग ये किए ना, मैथ्स में वही सोच लो जो लोगों का मैथ्स है। अगर मैथ्स नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल करके बता रहा हूं, 2-2 करके मासेस लेना है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन 2 masses M and M। सो कंसीडर 2 masses टुगेदर, राइट द फॉर्मूला GMM/r माइनस साइन, 2 masses GM/r, 2 masses GM/r with स्माइल बोली, विथ माइनस साइन। स्माइल तो रहना ही है, माइनस साइन भूलना मत। नाउ ये जो दिया ना, इफ यू थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो क्या इसका वैल्यू बता सकते हो? इफ यू थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, इक्वल मासेस आर प्लेस्ड M each
at the vertices of an equilateral triangle of length L each. So what is the total gravitational potential energy of the system? Total gravitational potential energy of the system कितना होगा? Can you answer this if you think you have understood this? चलो सोचो इसको, बोलो क्या बोलबे आगे टर्म होता है आगे टर्म होता है क्या बोलबे देखो we are going to end the class শেষ হতে চললো ক্লাসটা তিনটে মাস আছে এল 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 দূরে এম 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 তিনটে ভার্টিসেস তো তোমার বলতে হবে হোয়াট উড বি দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দিস সিস্টেম দুটো দুটো করে নাও মাইনাস জি এম এম বাই আর করো এম ওয়ান এম টু বাই আর चलो कर दी PE equals to minus G M into M M square divided by R माने L हो गया प्लस अरे उसका भी तो यही होगा ये दोनों का इसका भी तो सेम ही होगा That means 3 times minus gm square by L. तो minus 3 gm square by L. यही आंसर है. थ्री टाइम्स माइनस gm by L. L square नहीं L. Only L. नाउ क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट लिखेंगे एम एम एंड एम वेयर एट अ डिस्टेंस एल अब तुमको पसंद नहीं आया कि क्यों भाई एट अ डिस्टेंस एल क्यों रहेगा तो क्या करना है तीनों का डिस्टेंस बढ़ा दो ऐसे ऐसे करके सो दैट दे आर नाउ एट अ डिस्टेंस 2l फ्रॉम ईच अदर 2l फ्रॉम ईच अदर इसका माने ये इधर आ गया ये इधर आ गई ये भी इधर आ गई सो ये दोनों का डिस्टेंस अब हो गया 2l ये दोनों का डिस्टेंस अब हो गया 2l और ये दोनों का डिस्टेंस भी हो गया 2l दैट मीन्स दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर जोर करके टान के बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ना ग्रेविटेशन तो जोर करके टान के तीनों को दूर दूर कर दिया कितना डिस्टेंस पे 2l सो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में हो सकता है कि कॉमन मिल जाए ये व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज थिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यही चीज है तो सिंपल है सिंपल एक लाइन का आंसर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी जितना पहले था इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हम लोग देख लिए माइनस किसी एक का कितना जी
एम माने एम स्क्वायर बाई 12 हुआ फाइनली, ऐसा 3 बार, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। ये है फाइनल। माइनस पीई इनिशियल, वो भी माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल हुआ था, वो भी 3 बार। बस यही आंसर है। तो जी एम स्क्वायर बाई 12 माइनस और माइनस मिला के ये प्लस, दैट मीन्स ये 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, जी एम स्क्वायर कॉमन ले ही सकते हैं, बाई एल कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन। तो ये जो प्लस इतना आया पूरा का पूरा +1 कॉमन चला गया और वो टर्म हो जाएगा माइनस 3 कॉमन, 3 तो कॉमन, जी एम स्क्वायर कॉमन, एल कॉमन, तो इसका क्या बचा, सिर्फ हाफ। So answer is 3/2 gm square by L। इतना चेंज हुआ। ठीक है, gm square by L। तो ये है आंसर। आज का क्लास इतना, रहने दो, बाय।